صحیح بخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے، اے میرے بندے تو اپنے مسائل رکھ، میں تیری دعا قبول کر کے تیری مدد کروں گا، دوسروں کے لیے دعا مت کر، ان کے اعمال ویسے ہیں۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں، آج حرمین شریفین میں فلسطین کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ جب ہمارے نبی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے گر گرائے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد الی یوم القیامہ، میرے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت غزوہ بدر میں اگر ماری گئی، قیامت کی صبح تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ ان کی مدد فرما۔ جب ہمارے نبی اپنے ہاتھوں کو اتنے اونچے اٹھائے کہ چادر نیچے گر پڑی، ابو بکر کہتے ہیں بس کیجئے، اللہ آپ کی اب سن لیا ہے، بس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے ان کی مدد کیا، غیبی مدد کیا۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دنیا میں امریکہ کی طاقت بڑی ہے؟ کیا یہ اسرائیل کی طاقت بڑی ہے؟ کیا دشمنان اسلام کی طاقت بڑی ہے؟ یا ہمارے اللہ سبحانہ کی طاقت بڑی ہے؟ کیوں آج آسمان سے مدد نہیں آ رہی؟ اللہ اگر چاہتا آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا، لیکن اللہ کی اس میں حکمتیں چھپی ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہان کا اکیلا رب العالمین ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اللہ خالق دو جہاں مالک ارض و سما ہے، جس کا نہ کوئی ثانی ہے، وہ اکیلا ہے، بے مثال ہے، با کمال ہے۔ وہ خود اپنی تعریف، اپنی صفت بیان کرتے کہتا ہے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی اللہ کے لیے ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ہے۔ اللہ کی حمد کے بعد نبی پر درود نازل ہو، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و درود کے بعد آج 17 نومبر 2023 بروز جمعہ حیدرآباد بہادر پورہ کی مسجد عمر عصمت اہل حدیث میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی ضلع بلہاری کرناٹک آپ کے سامنے۔ اللہ کی مدد سے محروم ہونے والے بدنصیب لوگ کون ہیں؟ اگر ہم فصیح اردو میں اس کو بیان کریں تو نصرت الہی سے محرومی کے کیا اسباب ہیں، آج آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں بیان کروں گا۔ اللہ ہم کو حق بولنے کی توفیق عطا کرے اور حق بات واضح ہونے کے بعد اس سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی مدد ہمارے اوپر کیوں نہیں ہے؟ آج دنیا میں ہم مسلمان
कमजोर हैं या तादाद में कम हैं, ऐसी बात नहीं है। हम मुसलमान तादाद में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जलील और ख्वार हैं, मगलूब हैं, गालिब नहीं हैं, मगलूब हैं। इसकी वजह क्या है? हमारे बदआमालियां, हमारे गुनाह। चंद वजूहात हैं, वो पेश करूंगा, उसके बाद मैं कुरान और हदीस की आयतें और हदीसें आपके सामने पेश करूंगा। चंद वजूहात हैं, मेन वजूहात। अल्लाह की मदद से महरूम हम क्यों हो रहे हैं? हमारे बदआमालियां। नंबर 2, हमारे अंदर इबादत का ज़ौक़ कम हो गया है और हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने का ज़ौक़ कम हो चुका है। दुनिया से हमने ज्यादा दिल लगा लिया। नंबर 3, आज मुसलमानों को दीन की फिक्र कम है, अपने बीवी बच्चों की फिक्र ज्यादा है। मैं अच्छा रहूं, मेरी बीवी बच्चे अच्छे रहें, मैं कमा कर कुछ प्रॉपर्टियां कर लूं, मेरा ओहदा कुछ हो जाए, मुआशरे में मेरी एक बड़ा मुकाम आ जाए, उसकी फिक्र है, दीन की फिक्र नहीं है। जब हम अपने घर की फिक्र करेंगे, दीन की फिक्र नहीं करेंगे, कहां से अल्लाह की मदद आएगी? नंबर 4, आज हमारे अंदर मरने के बाद खबर में जाने से लेकर कयामत के मैदान में अल्लाह के दरबार में हिसाब देने तक की फिक्र में नेकियों का तोशा कमाने वाले कम हैं, बल्कि दुनिया की फिक्र में दौलत कमाने वाले बहुत ज्यादा हैं। मैं मरूंगा, खबर में मुझे निहत्ता ले जाकर रख देंगे, न सोना, न चांदी, न प्रॉपर्टी के कागजात, कफन में लपेट कर निहत्ता मुझे सुला देंगे। अब मुझे ही आखिरत का सफर तय करना है। वहां न दौलत, न वह दुनिया की शोहरत, न दुनिया का ओहदा, कुछ काम नहीं, सिर्फ अमाल काम आएंगे। उस अमाल को तोशा, नेकियों का तोशा कमाने वाले जमाने वाले कम, दुनिया की दौलत कमाने वाले जमाने वाले बहुत ज्यादा है। कहां से आएगी अल्लाह की मदद? नंबर 5, आज हम में से किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा नहीं है, अपने आप पर खुद एतमादी ज्यादा है। मेरे पास नौकरी है, मैं आराम से जी लूंगा, मेरे बेटे अमेरिका में रहते हैं, मुझे रिज़्क़ की कोई फिक्र नहीं है, मेरे बच्चे कमा कर भेजेंगे, मेरे पास इतने बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, उसका किराया आएगा, मैं आराम से, मेरी जिंदगी टल जाएगी। अल्लाह की जात पर भरोसा कम, अपने बल पर भरोसा, अपनी नौकरी पर भरोसा, अपने कॉम्प्लेक्सों पर, अपनी प्रॉपर्टियों पर, अपने कमाने वाले बच्चों पर भरोसा ज्यादा है। कब तक रहेंगी जी प्रॉपर्टी? ये कब तक रहेंगे? कब तक कमाएंगे आपके बच्चे? एक कोरोना का झटका आया, हट्टे कट्टे लोग जाके खबर में सो गए। अल्लाह की जात पर भरोसा करने वाले कम, अपने आप पर या अपनी प्रॉपर्टी या अपने कमाई पर भरोसा करने वाले ज्यादा। कहां से आएगी अल्लाह की मदद? परिंदे हमसे बेहतर हैं, जो सुबह उठते हैं, अल्लाह के हम्दो सना बयान करते, अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए। हम लोग निकलते हैं अपने आप पर भरोसा करके, अपनी नौकरी पर भरोसा करके। नंबर 6, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ता हमारा कमजोर हो गया, मस्जिदों से रिश्ता कमजोर हो गया। आज जाकर देखिए, मॉल भरे पड़े हैं, दुनिया के शॉपिंगों के मॉल, दुनिया के खेल तमाशे के फिल्म थिएटर आबाद हैं, मस्जिदें कसरत से बन रही हैं, लेकिन मस्जिदें वीरान हैं। जिस मुल्क में मस्जिदें वीरान रहेंगी, फिल्म थिएटर आबाद रहेंगे, जिस मुल्क में अल्लाह के दीन के इज्तिमा में लोग कम आएंगे, मेले में, ऐसे एग्जीबिशन में या बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों में लोग जाकर आबाद करेंगे, कहां से आएगी अल्लाह की मदद? कहां से आएगी अल्लाह की मदद? इंग्लिश कॉन्वेंटों में हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा तो भी डोनेशन दे दे के एडमिशन कराती है, दुनियावी तालीम हासिल कराए। मदरसे वीरान हैं, मदरसों में फ्री एडमिशन लेने तैयार है, फ्री एजुकेशन देने तैयार है, हाफिज़े कुरान बनाओगे, कयामत के दिन हीरे मोतियों का ताज आपका बच्चा आपके सरों पर पहनाएगा। ये फजीलत सबको मालूम है। दीनी इदारों में हमारे बच्चे कम और इंग्लिश कॉन्वेंटों में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। दुनिया को आबाद हमने ज्यादा कर दिया, अल्लाह के घरों को हमने आबाद करना छोड़ दिया। कहां से आएगी अल्लाह की मदद? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नंबर 7, आज हम लोग कुफार और मुशरिकीन के रविश पर चलना शुरू कर दिए। शिर्क और बिदअत को हमने आम होने दिया। जब हमारे आंखों के
अकेला सुधर गया ना, मैं तौहीद परस्त बन गया ना, मेरी खबर में मेरी जन्नत की खिड़की मिली तो मुझे बस मेरा पड़ोसी, मेरे खानदान, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे बिजनेस पार्टनर सब जहन्नम में जाने, मुझे परवाह नहीं। आज हमने दावत अल्लाह का काम छोड़ दिया, सेल्फिस्ट बन गए, उपपरस्त, मतलब परस्त बन गए। मैं अकेला सुन रहा बस, मुझे जन्नत मिली बस, दूसरे भाड़ में जाने, दूसरे जहन्नम में जाने। ऐसे हो गए हम लोग, दीन को फैलाना छोड़ दिया, कुफ्र शिर्क को अपने आंखों से देखते हैं, रोकने के बजाय तमाशाई बने खड़े रहते हैं कि जुलूस कैसे निकलेगा देखेंगे, जुलूस में क्या होगा देखेंगे, कैसे नाचेंगे देखेंगे, क्या होगा, कैसे डीजे बाजे रहेंगे, सब झांक कर देखेंगे। हुक्म क्या था? मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फमन लम यस्तति फबिलिसानिही फमन लम यस्तति फबिक़ल्बिही ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। हाथ से रोकते, जबान से रोकते, दिल में बुरा समझ के वहां से निकल के तो पढ़ते, वो भी हमने नहीं किया, तमाशा ही हम लोग बन गए। आएगी अल्लाह की मदद, हम पर आएगी अल्लाह की मदद। नंबर 9, आज दुनिया कमाने के चक्कर में मुसलमान हलाल हराम की तमीज भूल गए, उनको जरा भी परवाह नहीं, ये पैसे रिश्वत से आ रही या हलाल से आ रही, ये पैसे सूद के जरिए आ रही या हलाल के जरिए आ रही, ये पैसे मैं मेहनत से कमा रहा हूं या किसी के सर पे टोपी डाल के कमा रहा हूं, ये पैसे मैं जायज तरीके से ले रहा हूं या किसी को धोखा देके उसके जमीन को ठेस पहुंचा के गद्दारी करके ले रहा हूं, जरा भी परवाह नहीं। भाई भाई का नहीं, भाई भाई को धोखा देने वाला एक नंबर का धोखेबाज, हलाल हराम की तमीज हमने भुला दिया। कहां से नमाजें कबूल होंगी, कहां से रोजे कबूल होंगे, कहां से अल्लाह तबारक व तआला की इबादतें कबूल होंगी? अल्लाह तबारक व तआला की मदद ऐसे लोगों पर आएगी क्या? नहीं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो शख्स सूद खाता है वो अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग करता है। खुद सूरह बकरा के अंदर यह बात लिखा है, अल्लाह ताला सूद खा रहे हैं हम लोग, फिर अल्लाह की मदद के इंतजार में है कि फलस्तीन में ऐसा हो रहा है, गजा में मुसलमानों पर बमबारी हो रही है, मुसलमान परेशान है, सीरिया के मुसलमान परेशान, मिस्र के मुसलमान परेशान, फलस्तीन के मुसलमान परेशान, दुनिया के चप्पे चप्पे में परेशान। अरे मदद आएगी तो कहां से आएगी, कैसे आएगी, कैसे आएगी? और जो लोग पैर से लेकर सर तक अपने हरामकारी और हरामखोरी में, कोई शराबखोरी में, कोई जुआबाजी में, कोई सट्टाबाजी में डूबे हुए हैं, ना उनकी दुआ कबूल और ना उनकी नमाज कबूल। बराए मेहरबानी वीडियो ना करें आप मेरी, आपको इंशाल्लाह 2 दिन में वीडियो मिल जाएगी, वीडियो ना कीजिए। उन लोगों की ना नमाज कबूल, ना दुआ कबूल, ना हज कबूल, ना उम्रा कबूल। दुआएं करेंगे तो भी अल्लाह उनकी कोई इबादत कबूल नहीं करेगा, हरगिज हरगिज कबूल नहीं करेगा। ये 10 असबाब हैं जिसकी वजह से अल्लाह की मदद से आज हम लोग महरूम हैं। इन 10 आमाल को सुधारने की जरूरत है आज उम्मत मुस्लिमा को, 10 आमाल को बनाने की जरूरत है आज उम्मत मुस्लिमा को। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहता है, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह पाक है, सिर्फ पाक चीजों को कबूल करेगा, नापाक चीजों को कबूल नहीं करेगा। दुनिया वालों की प्रॉपर्टियां हड़प करके, चोरी से पैसा लेके, सूद से पैसा कमा के हज करने जाके अल्लाहुम्मा लब्बैक कहोगे तो क्या अल्लाह आपके गुनाह झड़ा देगा? अल्लाह आपके गुनाह क्या माफ कर देगा? ना अल्लाह आपका लब्बैक कबूल करेगा, ना आपका हज कबूल करेगा। अल्लाह ताला दूसरी जगह कुरान मजीद ही में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा मिनत तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ऐ मेरे बंदो, जो अल्लाह ने दुनिया में रिज़्क़ बनाया है, जो चीजों को पैदा किया है, इनमें से पाक चीजें खाओ, नापाक चीजों से अपने दामन को बचाओ। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ऐ रसूलो सुनो, अल्लाह की पाक चीजें खाकर नेक अमल करो। जब तक पेट में पाक लुक़मा रहेगा, आपके नेक अमल को हम कबूल करेंगे। पेट में पाक लुक़मा नहीं, हराम का लुक़मा चला गया, आपकी कोई इबादत कबूल नहीं करेंगे। जिस माशरे के नौजवान मगरिब और ईशा, असर मगरिब ईशा छोड़कर आईसीसी वर्ल्ड कप देखने में पड़ी रहेगी और सिर्फ क्रिकेटों के चक्कर में नमाजों को जाया करेगी, कि अल्लाह की नुसरत आएगी ऐसे कौम पर। रात के 12 बजे तक यूट्यूब टिकटॉक के वीडियो देखकर, इंस्टाग्राम के रील्स देखकर, फेसबुक के रील्स देखकर, रात के 2 बजे सोकर फजर की नमाज
हम लोग, कितने गंदे हैं हम लोग, कितने घटिया हैं हम लोग। किसी को कोई फतवा देने की जरूरत नहीं, हर इंसान अपने दिल में झांक कर देख ले, मैं कितना अच्छा हूं, अल्लाह की निगाह में मैं कितना बुरा हूं, मैं क्या सच्चा हूं, क्या मैं क्या बुरा हूं। हर आदमी अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। आज ये यूट्यूब, ये फेसबुक, इंटरनेट पर से हमारे नौजवान 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूरा दिन सर्व कर देते हैं। कुरान की तिलावत करने के लिए 5 मिनट का वक्त नहीं इनके पास, एक वक्त की नमाज अदा कर जाने के लिए 10 मिनट का वक्त नहीं इनके पास। कहां से आएगी अल्लाह की मदद? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, मेरी जमात, मेरे मुसलमानों पर, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा, तादाद में कसरत से तुम कसरत के तादाद में रहोगे, लेकिन सारे दुनिया के यहूद और नसारा इस्लामी दुश्मनान तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है। अल्लाह के नबी, क्या हम तादाद में कम रहेंगे? नहीं नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा रहोगे। तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत ज्यादा रहेगी, तुम्हारे दिलों में आखिरत से नफरत तुम्हारे दिलों में बढ़ जाएगी, मौत से नफरत करने लगोगे तुम लोग, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एक ऐसा जमाना तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम लोग दुआएं करना भी चाहोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। एक जमात अल्लाह से दुआ करेगी, अल्लाह के नबी कहते हैं एक जमात कयामत की सुबह तक हक पर कायम रहेगी, उसे कोई भी जलील नहीं कर पाएगा, उसे कोई मगलूब नहीं कर पाएगा। ये जमात अल्लाह से दुआएं करेगी, या अल्लाह दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म चल रहा है, अल्लाह उनकी मदद फरमा, अल्लाह इनकी मदद फरमा। अल्लाह कहेगा, ऐ मेरे बंदे, तू अपने मसाइल बयान कर, मैं तेरी मदद करूंगा, तू दूसरों के बारे में दुआएं मत कर, मैं उनके हक में तेरी दुआ कबूल नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि उनके अमाल वैसे हैं जिसकी वजह से उनको मैं वैसी सजाएं दे रहा हूं। सही बुखारी की हदीस है, 334 नंबर की हदीस, 155 नंबर की हदीस। हम बदअमालियों में पड़े रहेंगे, बेपर्दगियों में पड़े रहेंगे, हराम का खाते रहेंगे, टिक टाक के मुजरे बने रहेंगे, अपनी उड़ियानियत को, अपनी अय्याशी को दुनिया के सामने आम करते रहेंगे, कबीरा गुनाह करके भी अल्लाह से हया नहीं करेंगे, और शिर्क व बिदअत में मुलविस होकर भी अल्लाह की मदद की उम्मीद रखेंगे। कैसे आएगी अल्लाह की मदद? कैसे आएगी? अल्लाह कहता है, युबद्दिलुल्लाहु लहुम सुम्मा तब्दील लहुम अल-अर्द, अल्लाह ताला तुम जैसे नालायकों को सफाई हस्ती से मिटाएगा और इस जमीन पर तुम्हारे आने वाले ऐसे नस्लों को पैदा करेगा जो अल्लाह की ढंग से इबादत करेगी, अल्लाह की मदद इनके ऊपर आती रहेगी। जो लोग बदअमल करेंगे, शिर्क व कुफ्र करेंगे और देखने वाली तमाशा देखेगी, इनके कुफ्र से रोकेगी भी नहीं, अल्लाह उनको भी मिटाएगा। ये दावत का काम नहीं करने वाले इनको भी मिटाएगा, इनको जमीन से पाक करके एक ऐसी नस्ल लाकर खड़ा करेगा जो अल्लाह पे भरोसा करेगी, अल्लाह की इबादत करेगी, अल्लाह की मदद इनके साथ रहेगी। अल्लाह कहता है सूरह मोहम्मद की 7 की आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ऐ ईमान वाले, अल्लाह के बंदो, अगर तुम दीन की मदद करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद करो मतलब क्या? अल्लाह तुम्हारी मददों का क्या मोहताज है? अरे अल्लाह अल्लाहु समद है, वो बेनियाज है, हर चीज से बेनियाज है। अल्लाहु अहद, अल्लाहु कवी, अल्लाहु मतीन, वो बड़ा कवी है, वो बड़ा मतीन है, वो बड़ा गनी है, वो बड़ा कुव्वत वाला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसकी कुव्वत के सामने किसी की कुव्वत नहीं। फिर अल्लाह क्या पूछ रहा है? अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह के दीन की मदद तुम करो, अल्लाह तुम्हारी गैबी मदद नहीं करेगा। आज हम अपने आप की मदद नहीं कर रहे, अपनी नींद की कुर्बानी देके फजर की नमाज को नहीं आ रहे, हम अपनी तिजारत को हलाल नहीं बना रहे, अपनी जिंदगी में ईमान लेकर नहीं आ रहे, अपने घर को इस्लामी मुआशरा नहीं बना रहे, अपने खानदान वालों को शिर्क में देखकर भी उनको एक तौहीद का जुमला नहीं बोल रहे। अरे कहाँ नाराज होता कि भाई, कहाँ मेरे से बात छोड़ता कि मेरे ससुरे कहाँ मेरे से बिगड़ जाती कि मेरे उन्हों का नाराज होती कि तेरे दावत का काम न करने की वजह से वो अर्श वाला तेरे ऊपर नाराज हो रहा है, इसकी फिक्र नहीं तुझे, इसकी फिक्र नहीं। हम तौहीद का काम करना छोड़ दिए, अल्लाह हमको इस सफाई हस्ती से मिटाएगा, एक दूसरी कौम को लाकर अल्लाह खड़ा करेगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये बात अच्छी तरह जान ले, दुनिया में अक्सर लोगों के आमाल के
बिना पर आसमान में फैसले किए जाते हैं। अक्सर लोगों का जैसा बुरा अमल होता है उनके मुताबिक इन जमीन वालों को सजा देने के फैसले अल्लाह के आसमान में अक्सरियत लोगों के बदअमलियों की वजह से होते हैं। अगर अक्सर लोग नेकोकार हैं, अल्लाह की रहमत उतरेगी, अल्लाह की बरकतें उतरेगी। अगर माशरे की अक्सरियत बदअमलियों में, बुराइयों में, गुनाहों में और बदकारियों में अगर मुलविस है तो अक्सरियत के ऊपर आसमान के फैसले किए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक इस उम्मत के लोगों के सामने एक ऐसा आलम आएगा जब लोग अगर अमल करना भी चाहे अल्लाह तबारक व तआला इनकी कोई इबादत कबूल नहीं करेगा, इनकी दुआएं कबूल नहीं करेगा। यूशिकु अन तुनज़्ज़िला अलैकुम हिजारतन मिनस समा, आसमान से पत्थरों की बारिशें अल्लाह ताला इनके ऊपर बरसाएगा, पत्थरों की बारिशें इनके ऊपर उतरेंगी। आज मासूमों की जान जा रही है, औरतों की इज्जतों से खेला जा रहा है, मुसलमानों के जानो माल को नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कौन रो रो कर दुआएं नहीं कर रहा? कौन अल्लाह की मदद का इंतजार नहीं कर रहा? कहां से आएगी जी अल्लाह की मदद? मदरसे वाले बिहार से, यूपी से, झारखंड से, बंगाल से, उड़ीसा से रसीद की चंदे की पट्टियां ले लेकर घरों को, दुकानों को, यहाँ मस्जिदों को, आपके बड़े मार्केटिंग शॉपों को रसीदों लेकर भिखारियों की तरफ भटक रहेंगे। भाई हमारे मदरसे में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके राशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, आप अपनी ज़कात ही सही दे दो। जाओ जी रमजान में देते, हम नहीं देते, हमें निकले ना तो निकले जी, 100 रुपए निकले जी, मदरसों को देने पैसा नहीं। लेकिन वही अगर अपने खानदान के किसी बेटे की शादी आ जाए 25-25 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए सिर्फ एक रात शादी हाल को बुक करके हम जाया करेंगे पैसा। कहां से आएगी अल्लाह की मदद? दीन के इदारों को देने के लिए दिल नहीं है हमारे पास, अपने बच्चों की खुशियां शान से जमाने के लिए। क्यों? अगर मस्जिद में निकाह पढ़ाते हो 27 लाख रुपए एक रात में शादी हाल के लिए जो आप सर्व कर रहे हैं, फजूल खर्ची कर रहे हैं, डीजे बाजे को दे रहे हैं, लेकिन शोरूम को दे रहे हैं, या बड़े स्टेज के डिजाइनर को हजारों के लिए लाखों के पैसे डिजाइनर को दे रहे हैं। अगर वो ना भी देते, मस्जिद में निकाह पढ़ाते तो क्या निकाह नहीं होता? नहीं। हमारा पावर क्या, हमारा मुकाम क्या, हमारा पोजीशन क्या, हमारे हैसियत क्या, हम अपनी हैसियत के मुताबिक बड़े से बड़े ग्रांड हॉल में करेंगे, चाहे कितने भी लाखों का चला जाए। 2-2 किस्म के बिरयानियां, 2-2 किस्म के मुर्गे मुसल्लम, 4-4 2-2 किस्म के मीठे, और खाने के बाद के वो पान का शॉप अलग, वो कोल्ड ड्रिंक्स का शॉप अलग, आइसक्रीम का शॉप अलग। अस्तगफिरुल्लाह, कितना खाएगा आदमी? लाखों का पैसा शादी ब्याह के ऊपर उड़ा रहे हैं। अल्लाह के मस्जिदों में वीरान पड़े हैं, मस्जिदों के काम अधूरे पड़े हैं। अल्लाह के घर की तामीर को देने के लिए 1000 रुपए हमारे जेब से नहीं निकलते। अल्लाह के ये यतीम गरीब बच्चों के, मासूम बच्चों के मदरसे में कुरान की तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए 500 की नोट नहीं निकलती हजरत आली जनाब के जेब से। कहां से आएगी अल्लाह की मदद? कैसे आएगी अल्लाह की मदद? अरे जो कौम अपनी शॉपिंग में लाखों का रुपया खर्च करना जानती है, अल्लाह के दीन के लिए कंजूसी करती है, यकीनन ऐसे लोगों पर अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या रहमत उतरेगी? क्या अल्लाह की नुसरत आएगी? सोच कर देखिए। हमारे अंदर की खराबियों के बारे में बता रहा हूं मैं, हमारे अंदर की बुराई के बारे में बता रहा हूं मैं। अफसोस होता है मुझे, लेकिन बोलना पड़ता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी, हदीस कुदसी है, सही बुखारी की हदीस है, किताबुल रिकाक की ये रिवायत है, 952 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, वअन शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़हबु अस्सालिहून अल-अव्वलून व यबक़ा al-हुफ़ालात कहुफ़ालात अश-शईर अव at-तमीर ला युबादिहु अल्लाहु इलैहि। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, ये जान लो, अल्लाह ताला नेकोकारों को बहुत जल्द इस सफ़े हस्ती से मौत देकर उठा लेगा। नेक लोग आराम की मौत, सुकून की मौत की शक्ल में सो जाएंगे, अल्लाह नेकोकारों को मौत देकर दुनिया से उठा लेगा। अब दुनिया में वही लोग बाकी रहेंगे जो
एक नंबर के बदकार है, सियाकार है, गुनहगार है। ये ऐसे रहेंगे जैसे कोई आदमी खेत में अपने अनाज को अच्छा पिसने के बाद हवाओं में जब उड़ाता है, अनाज आकर नीचे गिरता है, उसका भूसा हवा के झोंकों से जाकर किनारे गिरता है। जो अनाज नीचे गिर गया, अल्लाह के नबी ने नेक लोगों की मिसाल दी। ऐसे नेक लोगों को अल्लाह निकाल लेगा, दुनिया से हटा लेगा। अब वैसे लोग बचाएंगे जो भूसे की तरह खशो खाशाक की तरह ले जाकर सटे। इन लोगों की जरूरत भी नहीं रहेगी अल्लाह अज़्ज़ा को। ये जी रहे, मर रहे, तड़प रहे, किस अजाब में झुलस रहे हैं, अल्लाह को परवाह भी नहीं रहेगी। इन लोगों की मिसाल उस भूसे जैसी है जिसे लोग बगैर किसी फायदे के छोड़ देते हैं। यह खजूर के खोशों के ऊपर से निकला हुआ खसो खाशाक का भूसा है, जैसे लोग उससे फायदा नहीं उठाते। ऐसे अल्लाह ताला इन नालायकों को, इन बदकारी के काम करने वाले गुनहगारों को अजाब की चक्की में डालकर पिसने के लिए दुनिया में छोड़ देगा। तुम दुआएं भी करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। आज हम मुसलमानों के पास हमारा ईमान मजबूत है, हमारा अकीदा मजबूत है, लेकिन तब भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे पास नहीं है। क्यों? सिर्फ ईमान मजबूत रखने से अल्लाह की मदद नहीं आती, सिर्फ अकीदा मजबूत रखने से अल्लाह की मदद नहीं आती। आमान करना पड़ता है, नमाजें पढ़ना पड़ता है, अल्लाह के राह में खर्च करना पड़ता है, अपने आप को अल्लाह के लिए कुर्बानी देना पड़ता है, तब आती है अल्लाह की मदद। हमारा ईमान पक्का, हमें कट्टर अहले दिशा, हमें कट्टर तौहीद परस्ता, खाली अकीदा घर में रखने बैठे तो अल्लाह फ्री में जन्नत नहीं देता। अपने आप को कुर्बानियों के लिए लुटाना पड़ता। अल्लाह ताला सहाबा किराम को रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का लक़ब क्यों दिया? क्यों दिया? हिजरत मदीना के वक्त पकड़ लिए सहाबा को, ए लाओ जी, ये दौलत मक्के में कमाई सो हमारी है, हम ना देखो जाओ, जाना चाहते अकेले जाओ, दौलत देकर जाओ। अरे दौलत क्या चीज तुम ना होना, ले जी दौलत तुम्हारी। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन बजादैन रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐसे बेशुमार सहाबा एक झटके में जिंदगी भर की कमाई पूंजी उनको कुर्बान कर दिए, निकल पड़े तने तनहा, न हाथ में ज़ादे राह है, न चलने के लिए सवारी है। अरे निकल पड़े तवक्कल अल्लाह, अल्लाह की जात पर भरोसा करके। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या कहा ऐसे सहाबा के बारे में? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। मेरे नबी सुना दीजिए इनको, इन्होंने जन्नत के इवज़ अपने जानों को अल्लाह तबारक व तआला से खरीद लिया। अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत को इन्होंने खरीद लिया। दुनिया में अपनी दौलत को कुर्बान करके, अपने जानों को कुर्बान करके अल्लाह की नेमतों का सौदा ही ना होने किया है, अल्लाह की जन्नत का सौदा ही ना होने किया। इनको जन्नत की बशारत सुना दो। है हमारे अंदर ऐसा जिगर? हमारे अंदर वो जिगर है? आईसीसी वर्ल्ड कप में बेट्टा लगाने वाले हम एक नंबर के नालायक का चोरा, बेट्टा बोले तो सट्टाबाजी, जुआ, ये जीतती वो हारती। अब इन्हें सेंचुरी मारता, उन्हें नहीं मारता। इतने लाख रुपए बेट, अस्तगफिरुल्लाह, गारत तो बर्बाद होकर जाओगे तुम लोग। ऐसे जुए खेलने वाले, ऐसे हराम की सट्टाबाजी करने वाले, अल्लाह की लानत उतरेगी तुम्हारे ऊपर। अल्लाह से डरो। अल्लाह अगर आज तुमको दौलत देना जानता है, कल वो दौलत छीन कर तुमको भिखारी बनाना भी अल्लाह की कुदरत जानती है। अपनी दौलत की नेमत समझकर कदर करो, वरना अल्लाह की बईद, अल्लाह का अज़ाब बईद नहीं है। अल्लाह ताला तुमसे बड़े बड़े मादाओं को, अपने आप को तुर्रम खा बोलने वाले सूरमाओं को इस सफा हस्ती से अल्लाह मिटा दिया। तुम्हारी क्या हैसियत है अल्लाह के सामने? बड़े बड़े अपने आप को यंग ऑफ किंग बोलने वाले बड़े बड़े बादशाहों को अल्लाह इबरत का निशान बनाकर इस दुनिया से मिटा दिया। तुम्हारी क्या हैसियत है अल्लाह के सामने? अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये दुनिया मोमिन का कैद खाना है। कैद खाने में कोई एंजॉय नहीं करता। कैद खाने में बाहर निकलकर अपने सुकून का नेमत तलाशता है। ये दुनिया मोमिन का कैद खाना है। हमको यहाँ से निकलना है। आखिरत हमारी जन्नत है, हमारा असली ठिकाना है। उस जन्नत में नेमत तलाशने के लिए नेकियों की बीज यहाँ पर हमको बोना है। ये दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। यहाँ जो अमल करेंगे वहां हम उसका बदला, उसका फल पाएंगे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मेरी पर्दा नशी माँ और बहनों, जितना जो आदमी
जितना दीन से बेपरवाह होकर दुनिया की अय्याशी में मगन रहेगा, उतना ही उसे आखिरत में जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। जो आदमी दीन से बेपरवाह होकर दुनिया में अय्याशी के काम करेगा, आखिरत में उसे उतना ही जिल्लत सहना पड़ेगा। और जो आदमी दीन के लिए मसाइबों को बर्दाश्त करेगा, मुसीबतों को सहेगा, फाका गुजार लेगा लेकिन हराम का लुकमा हाथ नहीं लगाएगा, नमाजें पढ़ने के लिए सर्दी से ही ठंडे पानी से वजू करके नमाजें अदा करेगा, दीन पर चलने के लिए छोटी मोटी जो मशक्कतें वो बर्दाश्त करेगा, अल्लाह आखिरत में बड़ी बड़ी नेमतों से उसे मालामाल करेगा। दुनिया के आखिरत के मुसीबतों के सामने ये दुनिया की छोटी मोटी मुसीबतें कोई हैसियत नहीं रखती। आखिरत की जन्नत की नेमतों के सामने ये दुनिया का एंजॉय, ये दुनिया की खुशियां कोई हैसियत नहीं रखती। इस दुनिया में एंजॉय करने का ख्वाब मत देखो, इस दुनिया में खुशियों से झूलने के ख्वाब मत देखो। ये दुनिया हमारी नहीं, काफिरों की दुनिया है। हम क्या सोचते हैं? हम दुनिया में अमन से रहे, सुकून से रहे, हम बड़े खुशी से रहे, खुशियों के झूले में झूले, हमको बस एंजॉय चाहिए। ये दुनिया का एंजॉय चाहिए, अल्लाह बोलता ले ले, लेकिन आखिरत में नहीं मिलेगा। आखिरत की जन्नत की नेमतों के सामने दुनिया की ये खुशी कोई हैसियत नहीं रखती। आखिरत के जहन्नम के अज़ाब के सामने दुनिया की छोटी मोटी मुसीबतें कोई माना नहीं रखती। इसलिए दुनिया में इस्लाम पर चलने के लिए छोटी मोटी आजमाइशों को बर्दाश्त कर लो, लेकिन आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से बचने की खातिर गलत काम मत करो, बुराई मत करो, गुनाहों पर मत चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला जब जन्नत को बनाया, जब जहन्नम को बनाया, अल्लाह ताला जन्नत के इर्द गिर्द जन्नत के इर्द गिर्द आजमाइशों को घेर दिया, जहन्नम के इर्द गिर्द दुनिया की अय्याशियों को घेर दिया। जो आदमी दुनिया में आजमाया जाएगा, जैसे सहाबा इकराम आजमाए गए, जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम आजमाए गए, उनको अल्लाह जन्नत अता करेगा। लेकिन जो एंजॉय करेगा, अय्याशी करेगा, फहाशी में उतरेगा, मौज मस्ती करेगा, उसका ठिकाना अल्लाह जहन्नम कर देगा। क्योंकि जहन्नम के इर्द गिर्द अल्लाह अय्याशी और फहाशी को घेर रखा है, जन्नत के इर्द गिर्द अल्लाह आजमाइशों को घेर रखा है। आखिरी हदीस बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इज़ा अरादा अल्लाहु बिअब्दिहिल खैर अमिला लहुल उक़ूबा फिद दुनिया व इज़ा अरादा अल्लाहु बिअब्दिहिश शर्र अमसिक अन्हु बिज़ंबि हत्ता युआफ़ी बिही यौमिल क़ियामा। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करता है तो अल्लाह ताला दुनिया में उसे आजमाइशों में मुब्तला कर देता है, उसे इतनी आजमाइशें देता है, उसे इतनी परेशानियां देकर, इसे इतने तकलीफें देकर उसके गुनाह माफ करके उसे बिल्कुल पाक करके आखिरत के लिए अल्लाह उठा लेता है, आखिरत में उसे जन्नत देता है। लेकिन जिस बंदे के साथ अल्लाह का इरादा भलाई का नहीं होता, बुराई का है, वो आदमी खुद बुराई में पड़ना चाहता है, अल्लाह उसे दुनिया में इतना दे देता है, इतना दे देता है, आखिरत में अल्लाह उसके लिए कोई नेमत बाकी नहीं रखेगा, बड़े अज़ाब अलीम में अल्लाह ताला उसे मुब्तला कर देगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये थे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाबात और अल्लाह ताला के नुसरत से, अल्लाह की मदद से महरूम होने की चीजें। आज जरूरत है हमको अपने अमाल को सुधारने की और अपने गुनाहों से तौबा करने की, अल्लाह के दीन पर चलने की और अपने गुनाहों से सुधार पैदा करके दीन इस्लाम को अपनाने की। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल, नेक हिदायत अता फरमाए, कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار.
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اپنی صفوں کو درست کریں، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملائیں، اپنے دو کاندھوں کے بیچ میں گیپ نہ چھوڑیں ورنہ شیطان بیچ میں آ کر وسوسے پیدا کرے گا۔ شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑتے ہوئے اپنے پیروں کو چھوٹے کر لیں۔ کندھے نہیں ملے ہیں تو پیروں کو چھوٹے کر کے کندھے ضرور ملا لیں۔ قدم کا ملنا ازحد ضروری ہے، کندھوں کا ملنا بھی بے حد ضروری ہے۔ مرد حضرات اپنے کپڑے ٹخنوں سے اوپر، مائی بہنیں کپڑے ٹخنوں سے نیچے رکھیں۔ سب درست کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.